पत्रकार साथीगण, आज हम लोग एडीपी पार्टी, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हम लोग भी इस दहलीज पे आज विराजमान है। तो आज हम लोग बहुत ही विशेष बात आपके माध्यम से हम लोग समस्त अरुणाचल को हम लोग बताने वाले हैं। तो ये क्या है करके हम थोड़ी देर में हमारा जो प्रेसिडेंट महोदय है उनको हम आग्रह करेंगे कि वे आएंगे और आपको आज की जो मुद्दा है उनके बारे में आपको विस्तार से वो बताएंगे। जैसे कि एडीपी पार्टी जो है, हाल ही में देख रहे हैं अरुणाचल में सियांग डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर एक ऑर्डर पारित कर रहे हैं, जैसे कि ये बता रहे हैं कि एक लेटर जो है, नंबर है SG/CSR 01/2022-23 डेटेड बॉलिंग दिनांक 6/12/2024 में एक ऑर्डर पारित करते हुए TPS को वहां तैनात करने के लिए ये एक ऑर्डर पारित कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए एडीपी पार्टी जो है, एक लोकल पार्टी होने के नाते बहुत ही चिंतन है करते हुए हम आज यहाँ आए हैं। तो मैं और ज्यादा विस्तार से आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपके समक्ष में परिचय कर दूं मेरे बहुत करीब अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी के माननीय प्रेसिडेंट अमी पांगू जी और उनके करीब अकुत अली जी जो हमारा सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इस समय मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि हमारा पार्टी प्रेसिडेंट जो आज हम विशेष करके जो आए हैं उनके बारे में विस्तार से आपके समक्ष लाते हुए अरुणाचल को बताएं। Thank you, Vice President Sir. Good morning to everyone. Today we are here. My spokesperson of ADP has already told you that today's press briefing is based on a letter from Deputy Commissioner Siang regarding accommodation of Central Armed Police Force in conduct of pre-feasibility report of Siang Upper multi-purpose projects. The ADP is viewed this letter very seriously. Everybody knows that Siang Belt from Tuting of Upper Siang district to Ruksin, Assam Arunachal boundary is inhabited by Adi community, comprising of very peace-loving and very humble nature people. People of Siang Belt mostly depend socially, economically and culturally on land, forest and rivers. Their main source of income is from agriculture, horticulture, forest produces and fishing, and so they are very highly protective and possessive to their land, forest and rivers. It seems to Arunachal Democratic Party that whatever is going on in the Siang Upper multi-purpose project reflects the failure of government mechanism to convince the public of the affected areas. The region consists of 3 MLAs, one being the Minister, RD, Rural Developments and Panchayati Raj, etc. under the state government. The other one is former Minister Health and presently advisor to SCM. And their inability to redress their own public grievances is a matter of very serious concern. Our question is that
If the majority of land owners are not interested for the project, then why the government is not taking alternative measures for the said project? What actions have been initiated from the side of elected representatives to convince their own people of the affected areas till that? Why don't they convince the public of the areas? Is there any armed rebellion being planned? If not, then what is the use of Central Armed Police Force there? In case any untoward incidents happen with our fellow brethren, who will be the responsible one? The government, the MLS, or the concerned deputy commissioners? Arunachal Democratic Party believes that every developmental project should be eco-friendly as well as people-friendly. In a democratic country like India, forceful implementation of any project by using Central Armed Police Force is a violation of constitutional provisions of fundamental rights to its citizens. We, the Arunachal Democratic Party, term such forceful act from the side of state government as anti-people. We don't want one more firing incident that happened at Tabang on May 2, 2016, where 2 people died and more than 10 persons were injured. Therefore, Arunachal Democratic Party, as a regional political party of the state, would like to appraise our young and dynamic, the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, not to resort to such forceful action against the will of the indigenous people of the state, and instead constitute a high-level committee including members from all political parties, the CBOs, etc., before conduct of the pre-feasibility report to assess the ground reality of the said issues so that the matter is resolved in an amicable way. तो मैं हिंदी में इसको जस्ट सिंपल से बता देता हूं कि आज का प्रेस ब्रीफिंग हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट का डीसी द्वारा एक लेटर इशूड किया गया था कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को रिव्यू विलेज में बैठाने के लिए रिगार्डिंग प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो इसमें आप सबको, हम सबको पता है कि सियांग बेल्ट जो आपका तुटिंग से लेके आपका रुकसिन असम अरुणाचल बाउंड्री तक हमारा आदि समुदाय के लोग बैठे हुए हैं। तो हमारे लोग बहुत ही शांतिपूर्वक है और ये लोग वायलेंट एक्टिविटीज पे बिलीव नहीं करता है। तो हमारा सियांग बेल्ट के लोग, उन लोग का रोजी रोटी जो आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और आपका वन से जितना भी आपका प्रोड्यूसेस है, रिलेटेड है फॉरेस्ट से, एंड आपका पीसिंग में ही डिपेंड करता है। तो उस वजह से हमारे लोग, सियांग बेल्ट के लोग अपना जमीन, अपना फॉरेस्ट और अपना नदी को लेके बहुत ही प्रोटेक्टिव है और पोसेसिव है। तो हाल ही में जो अपर सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को लेके जो भी गंदगोल वगैरह चल रहा है, तो इसको हम एडीपी गवर्नमेंट का मैकेनिज्म फेल्यूर का नजर से देखा जा रहा है। तो बल्कि हमारा अफेक्टेड एरिया में, एरिया से ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स है, लोकल एमएलएस है, एक फिलहाल हाल ही में गवर्नमेंट का साथ में मिनिस्टर आरडीएन पंचायत है, और एक आपका पूर्व हेल्थ मिनिस्टर थे, और फिलहाल अभी सीएम, हमारा सीएम का एडवाइजर है। तो उन लोग का रहते अपना पब्लिक ग्रीवेंसेस को सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है?
उसको एमिकेबली रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहा? ये हमारा एडीपी का क्वेश्चन है। तो उसमें अभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस बैठाया जा रहा है, तो उसका क्या रीजन है? क्या वहां पे आर्म रिबेलियन होने का प्लान है क्या, या तो वहां में एक्सटर्नल फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट है क्या? अगर ऐसे कुछ नहीं है तो हमारा जो आदि समुदाय के लोग इतना खराब नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को लगता है कि उसमें सेंट्रल फोर्सेस लगा के जबरदस्ती अब एक प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करना ये उचित नहीं है। तो कल को इन केस वहां में अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, पुलिस फोर्सेस और लोकल समुदाय के बीच कुछ झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, उसका रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? उसका ना स्टेट गवर्नमेंट होगा, या आपका लोकल एमएलएस लोग होगा क्या, या डीसीस होगा क्या? उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला क्लियर कट बताना चाहिए। तो हम अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी एज ए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, हम यहाँ का इको फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली डेवलपमेंट चाहता है। तो इसमें जैसे कि हमारा भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसमें अब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस लगा के जबरदस्ती किसी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कराना, ये फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन है। तो इसको देखते हुए हम अभी जो एक्टिविटीज अपर सियांग में चल रहा है, तो उसको हम लोग एडीपी क्लियरली एंटी पीपुल का नजरिया से देखा जा रहा है गवर्नमेंट को। तो हम लोग एडीपी ये नहीं चाहता है कि तवांग में जो 2 मई 2016 को जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ, जिसमें 2 आदमी का जान चला गया और 10 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुआ, तो वो इंसिडेंट दोबारा हमारा अरुणाचल का कहीं भी कोना में नहीं चाहता। तो इसलिए हम अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी हमारा सरकार से, स्टेट राज्य सरकार से, हमारा यंग एंड डायनेमिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी से ये आग्रह करता हूं कि फोर्सफुल एक्शन फोर्सफुली उधर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कराने की कोशिश ना करें, और उसका जगह में आप एक कमिटी बनाए, हाई लेवल कमिटी बनाए, उसमें अब हर पॉलिटिकल पार्टी का लोग भी मेंबर इन्वॉल्व हो, और वहां का जो सीबीओ से वो भी इन्वॉल्व हो, ताकि हम एमिकेबली मैटर को शांतिपूर्वक सॉल्यूशन करें। दैट्स ऑल।